কথায় আছে ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ দ্য লাস্ট ইমপ্রেশন। অনেকেই আছেন যে তারা লুকস দিয়ে নয়, পাওয়ারফুল পার্সোনালিটি দিয়ে কিন্তু ইমপ্রেস করার চেষ্টা করে। হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জিও বাংলা, আপনাদের সঙ্গে আমি মেঘা। আজকে আমরা জানবো কিভাবে একটি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গড়া যায়। আর আজকে চলুন আমাদের গেস্টের সাথে আপনাদের পরিচয়টা করিয়ে নিই। আজকের আমাদের বিউটি কথার গেস্ট আ ভেরি ট্যালেন্টেড অ্যান্ড গুড লুকিং ম্যান, তানভীর খান। হ্যালো, ওয়েলকাম টু জিও বাংলা। Thank you very much for the warm welcome, and I'm really looking forward to I would say a wonderful interview. So lots of love. আচ্ছা, একটা কথা তোমার কাছ থেকে আমি জিজ্ঞেস করবো, সেটা হচ্ছে যে আজকে যে আড্ডাটার মধ্যে তোমার কাছ থেকে কিছু টিপস নেব সবার ক্ষেত্রে, কারণ একটা না মানে পার্সোনালিটি একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় হয় যে গুড লুকিং না হলেও পার্সোনালিটিটা এমন একটা এফেক্ট ফেলে যায় আমাদের জীবনে যে পরে গিয়েও আমরা রিকল করি তার কথা, বা তাদের পার্সোনালিটি আমাদের ভালো লাগে। তো এরকম একটা পাওয়ারফুল পার্সোনালিটির জন্য তুমি কি কি টিপস দেবে? I think सबसे पहले तो it's not always the clothes. हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि ब्रांड पहनो तो आप बहुत बेहतर दिखोगे। कुछ हद तक वो राइट होता है, बट मेजरली ना इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी दैट क्लोथ. यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि आपके बॉडी के हिसाब से व्हाट मेक्स यू कंफर्ट. तो पहली बात आ जाती है कि दैट यू हैव टू वेयर दैट कंफर्टेबल क्लोथ्स. सेकंड इज you have to carry that. Third is you have to always wear a smile, because the moment you wear a smile, I think सारी चीज़ें बहुत comfort हो जाती है. And the fourth, the major thing is you need to understand the color, you know, the mood board of or the mood of the event where you're going, or the place where you're going. So you need to dress up appropriately. অবভিয়াসলি। আরেকটা যেটা জিজ্ঞেস করবো, যে রাতারাতি কিন্তু কোনো কিছু হয় না, বা এক দুদিনেও কোনো কিছু পাওয়া যায় না। তো প্রত্যেক দিন একটা অভ্যাসের প্রয়োজন হয় যে কোনো কিছু বেটারের জন্য। তো কি কি অভ্যাসের জন্য বা প্রত্যেক দিন কিভাবে নিজেকে তৈরি করার পরামর্শ দেবে? See, I think अभी के टाइम में ना there's a lot of competition going on. तो most of the time we really look up to celebs कि उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, या स्टाइल स्टेटमेंट कैसा है, या फिर फैशन में भी क्या नया आया, व्हाट इज़ ट्रेंडिंग मोर. तो लोगों को ये जो डिफरेंस बिटवीन अ फैशन एंड अ ट्रेंड है ना, वो बहुत कम देखने को मिलता है. मेरे को ऐसा लगता है कि फैशन इज समथिंग विच इज़ ऑलवेज अबाउट योर क्लोथ्स एंड विच इज़ देयर इन द मार्केट, बट ट्रेंड इज समथिंग विच वन कैन कैरी विद इन. सो यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड. तो कभी कभी होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ जब हम देखते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर में अच्छा नहीं जाता है. मे बी सम सॉर्ट ऑफ कलर वेयरिंग, और जिस सिचुएशन में हम उसको पहन रहे हैं. तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ कंफर्टेबल यू आर विथ योर ओन बॉडी. क्योंकि कभी कभी हमारे बहुत कंप्लेन्स होते हैं कि अरे दैट पर्सन इज़ वेरी गुड लुकिंग, थोड़ा एब्स है, हमारे पास तो एब्स नहीं है. अगर मैं इस तरीके का शर्ट पहनूँ टक करके, तो मेरे पर में कैसा अच्छा लगेगा. आई थिंक देर आर फ्यू थिंग दैट वन नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप वेन एवर यू गोइंग टू बाय अ न्यू क्लोथ्स, चेंज योर वार्डरोब. सो शर्ट्स के लिए मेजरली आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आप जो भी कलर पहन रहे हो, इफ इट इज लाइक एन ऑफिशियल, सो नीड टू गो विद अ लाइटर कलर. सो बी इट वेयरिंग अ वाइट शर्ट और a light blue or a light baby pink, which really suits your personality, especially in the summer time or a winter time, especially in the daytime. और shirts के लिए majorly always go for that U cut, because कभी कभी ऐसा होता है कि after an office you are invited to a party, so you need to be like little ready for that. In that case I always prefer कि आप formal pant नहीं पहन के chinos पहने, because you can just give a different look out of that. The most important, the eye catch always is what shoe, like you know, हम कभी भी किसी को देखते हैं ना, तो हमारा पहला जो इंडिकेशन जाता है वो हमेशा नीचे से ऊपर जाता है. तो जूते जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड जूते से होकर आप अगर फॉर्मल पहन रहे हैं तो बेल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके जूते और बेल्ट का मैचिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. सिमिलरली आप जो ट्राउजर्स पहन रहे हैं या चीनोस पहन रहे हैं, ऑलवेज वेयर शॉक्स विच आर वेरी ईजी कलर विच सूट्स टू द सेम कलर. तो कभी कभी हमने देखा है कि कुछ कुछ फॉर्मल में लोग बेबी फ्लोरल पहन लेते हैं शॉक्स. वो नहीं होना चाहिए. अभी ट्रेंड जो है कि इट्स लाइक इन हाफ शॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं करके. जनरली क्या होता है, लोग उसको पहनते ऐसे हैं और वो दिखता है. वो दिखना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स अगेन लाइक यू आर ट्राइंग टू हाइड दैट शॉक्स, बट यू रियली वांट टू वेयर इट. तो वो दिखना नहीं चाहिए. सो देयर आर वेरी बेसिक्स थिंग. कभी कभी हमने से अगर ट्राउजर हमने ब्लैक पहना है, हम व्हाइट शॉक्स पहन लेते हैं, विच इज अप्रोप्रिएटली नॉट गोइंग विद आउटफिट. It's not about that if you're wearing a white color shirt or a black trouser, उसमें try and wear dark colors. And especially जब आप trousers पहन रहे हैं,
तो वो शॉक्स ट्राउजर के साथ मैच होना बहुत जरूरी हो जाता है. एंड द बेसिक एमिनिटीज आई थिंक whenever you wearing a formal, always carry a good watch. You know, आप चेन रिलेटेड पहन सकते हैं या फिर आप लेदर बेल्ट पहन सकते हैं, बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स मेकिंग यू मोस्ट परफेक्ट. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ and also how adaptable you are with the changing time. অবভিয়াসলি। আচ্ছা, আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করবো, সেটা হয় কি অনেক সময় আমাদের হয় কি নেগেটিভ কিছু এনার্জি আমাদের ইম্প্যাক্ট ফেলে লাইফে, তো সেগুলো থেকে ওভারকাম কিভাবে করা যেতে See, পারে? negative energy as such, I will tell you कि हम कभी-कभी ऐसे होता है हमारे लाइफ में, अगर हम किसी से मिलते हैं तो मिलकर बहुत अच्छा लगता है, হ্যাঁ, करेक्ट. बट कभी-कभी ऐसे होता है कि हम बहुत पॉजिटिवली मिलने जाते हैं, बट मिलने के बाद हमें थोड़ा सा लो फील होता है. Yes. इट्स जस्ट अबाउट एक्सचेंजिंग ऑफ एनर्जीज. वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज तब होता है ना कि यू मस्ट हैव सीन ना, से अगर आप कोई ट्रेस पासर को या फिर कोई स्ट्रेंजर को आप एक छोटा सा स्माइल पास करते हो, आई एम श्योर यू विल गेट दैट रिटर्न स्माइल. बट अगर आप बहुत गुस्से से उसको देखते हो तो यू विल रिटर्न दैट गुस्से वाला लुक. तो एनर्जी क्या होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड. से सपोज इफ आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई फील दैट यू आर नॉट वेयरिंग योर स्माइल, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है. डोंट ट्राई टू इनटेक दैट एनर्जी विद इन यू. सो अगर आपको लगता है कि वो कॉन्वर्सेशन माइट टेक यू टू अ नेगेटिव, जस्ट एंड द कम्युनिकेशन, ब्लेस दैट पर्सन एंड मूव अवे. আচ্ছা, আরেকটা বেশ কমন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো, সেটা হচ্ছে যেহেতু মানে কর্পোরেট লাইফে আমরা সবাই ফেস করি এটা, যে কোনো সময় আমাদের ইন্টারভিউ থাকলো বা কোনো একটা মিটিং থাকলো, সেই সময় একটা আলাদা ড্রেস আপ থাকে, আবার সাডেনলি সেই সময় মানে সেই দিনই আমাদের হয়তো কোনো পার্টি রয়েছে, মানে যে কোনো কিছু একটা অকেশন রয়েছে, তো এই দুটোকে কিভাবে ব্যালেন্স করা যেতে পারে, কি টিপস দেবে? See, basically, as I said before also, कि you need to understand about your comfort zone. तो स्किन टोन बहुत मैटर करता है हमारे लिए, एंड बेस्ड ऑन द स्किन्स जो ऑफिशियल कलर्स है पकड़ लो. वेर आई एम सेइंग कि अगर सेम डे ऑफिस के बाद देयर इज एन ऑफिस पार्टी, करेक्ट, तो उस दैट केस में वी आर वेयरिंग अ वेरी फॉर्मल अटायर. अब ऑफिस पार्टी में भी जाना है तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप जो ट्राउजर्स पहन रहे हो या जो भी कलर आप ले रहे हो, से सपोज यू आर वेयरिंग, अगर ये डे टाइम है तो लाइट कलर है, बट इफ इट इज इन इवनिंग टाइम यू आर गोइंग, तो ट्राई टू वेयर समथिंग विच इज वेरी डार्क कलर, बिकॉज इवनिंग में दैट रियली सूट्स यू. डार्क कलर के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन यू ट्राइंग टू गो फॉर एन ऑफिशियल पार्टी, अगर आपको पता है, ऑलवेज ट्राई टू यूज सम पैटर्न्स इन योर शर्ट्स. शुड नॉट बी वेरी बोल्ड, वेरी हाई, बट आप छोटे चेक्स पहन सकते हो, कुछ छोटे. इट्स नॉट फ्लोरल. आई ऑलवेज से कि ऑफिस में डोंट ट्राई टू वेयर दैट फ्लोरल वाला शर्ट. तो उस किस्म के अगर आप चेक्स एंड पैटर्न्स पहनते हो तो उसमें क्या हो जाता है, यू बिकम वेरी इजी टू वेयर. और अगर आपको लगता है कि ठीक है, अगर इफ इट इज इन वेरी ऑफिशियल पार्टी, टू ट्राई टू वेयर द सेम कलर सो दैट इट रियली सूट्स टू योर इन द डे टाइम एज वेल. कुछ ऐसे कलर्स, से यू आर वेयरिंग से नेवी ब्लू, correct, or a dark blue, something like that, or a black you're wearing, so black can go also in the sometime in the summer time, and as well you can carry in the evening. Similarly, say suppose you have a very informal party and you have an office and you have no time to go and change. In that case, I would say that avoid trousers, try to wear chinos, so that in that case what you can do, that अब क्या होगा कि try and wear something which is very casual. So after a moment you just get a time to just pull up your sleeves and everything, and then you can go for it. So it's always to understand the color board, the mood board. मतलब mood board is basically to understand कि अभी 2 घंटे आप यहाँ पे हो, 2 घंटे बाद कहाँ पे रहने वाले हो, and importantly what you wearing. So a smart collections of accessories is also very important. So आप formal पहनो या informal पहनो. If you're wearing glasses also, try and use like glasses जो formals में जाते हैं. Don't try to wear something like informal glasses also. আচ্ছা, So that becomes an accessories. আচ্ছা, আরেকটা যেটা, সেটা এখন বর্তমানে বিরাট ট্রেন্ড, যে বলিউড হোক হলিউড হোক তাদেরকে একটা কপি করার একটা বিষয় থাকে, কিন্তু যেটা তুমি বলছিলে যে সবসময় এরকম কোনো মানে নেই যে তাদেরকে যেটা ভালো লাগছে সেটাতে আমিও কমফোর্টেবল হবো বা আমি ওটা ক্যারি করতে পারবো, তো সেটার কি কিছু বেসিক টিপস রয়েছে যাতে আমরা সেগুলোকে করতে পারি, মানে তাদের মতন আমরা নিজেদের স্টাইল করার? See, it's as important कि हम बॉलीवुड्स में जो देखते हैं, definitely we always try to adapt the same style. बट कभी कभी ऐसे होता है, लुकिंग एट योर ओन बॉडी, इट डजंट सूट्स टू योर पर्सनैलिटी. तो मैं बोलता हूँ कि यू हैव योर ओन टेलर, गेट इट कस्टमाइज. तो कभी कभी से इफ यू हैव सीन समबडी वेयरिंग अ वेरी जैजी शर्ट्स, मे बी यू आर गेटिंग इन द मार्केट, आप वो फिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इन दैट केस आई वुड से कि कोई भी कपड़ा, बी इट ब्रांड और नॉन ब्रांड, अगर उसका फिट सही नहीं है तो आई थिंक दैट रियली लीड्स यू टू अ डिफरेंट डायरेक्शन.
तो आप कभी भी कोई भी स्टाइल कॉपी करो टू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन शेप एंड एट द सेम टाइम फिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो से सपोज अगर किसी ने हिप हॉप में लोअर शोल्डर पहना है, मे बी यू कैन वेयर लाइक अ लोअर शोल्डर ऑल्सो, बट इन दैट केस ऑलवेज गो एंड गिव अ ट्राई. Maybe you can use different accessories to wear it, but the idea should be that wow factor should has to be there. अगर आपको कोई देखे, should not be like, say suppose you are a fan of wearing black. अब black में बहुत बढ़िया भी collections लेकर आओ या changes लेकर आओ, तो अगर आप किसी से पूछते हो, अच्छा हाँ black तुम्हारे पर अच्छा लगता है, हाँ every day you are like same. तो try to use colors. मतलब in that case I would always recommend कि आप एक्सपेरिमेंट करो. इफ यू रियली फील दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू कैरी इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन एवर यू गोइंग इन बाइंग क्लोथ्स, ऑलवेज चेक ऑन कि आपके मेजरमेंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए. इफ द मेजरमेंट इज नॉट अनअप्रोप्रिएट देन डेफिनेटली नथिंग विल सूट्स यू. অবভিয়াসলি. আচ্ছা, আরেকটা ছোট্ট আমার প্রশ্ন রয়েছে, সেটা হচ্ছে আমরা নানান যে ফ্যাশন শোগুলো দেখি সেখানে নানান রকমের জামা কাপড়, যেখানে নানান রকম এক্সপেরিমেন্ট করা থাকে, সেইগুলো কি সত্যি রিয়েলে পরা যায় বা রিয়েলের ক্ষেত্রে সেগুলো কি চলে, মানে কি বলবে এই ক্ষেত্রে? आई थिंक 80% नहीं चलते हैं. ठीक है, एज आई सेड कस्टमाइज. सो हम जो प्लेटफॉर्म्स में या फिर रैम्प्स में जो देखते हैं उसको हम थोड़ा सा स्टाइलिंग के बेस में, क्योंकि वो सारे जो कपड़े होते हैं, जो कलर्स होते हैं, दैट्स आर डिजाइन बेस्ड ऑन द सेटअप, लाइट्स, मॉडल लुक. बट क्या होता है रेगुलर लाइफ में यू आर योर ओन मॉडल. तो एज आई सेड कि इट्स इंपॉर्टेंट कि इफ यू really want to go with the same designs, always use the customize. Go and if you don't understand about the fashion or your clothes और आपको कौन से garment आपको सूट करता है या फैब्रिक सूट करता है, तो always take a help from a styler. That will really help you to कि आपको कौन सा कलर किस वक्त में पहनना चाहिए, कौन सा एक्सेसरीज आपको जाएगा. तो इट रियली हेल्प्स. आप पहन सकते हो डेफिनेटली. आप जो टीवी पे देख रहे हो, everyone wants to copy and you know just be in the limelight. It's very important, but at the same time measurement ध्यान में रखो आप, and don't try to copy, just try to be own, like you know, you create your own style. I would say. এক্স্যাক্টলি. আচ্ছা, আমাদের গেস্ট উপস্থিত রয়েছে, তার কিছু সমস্যা রয়েছে, চলো তাহলে সেটা শুনে নিই, তাকে ওয়েলকাম করি. Absolutely, look forward. আমাদের গেস্ট হুজের খান. হ্যালো হুজের, ওয়েলকাম টু জিও বাংলা. ফর্মালের ক্ষেত্রে তোমার কি ধারণা রয়েছে? देखिए, हमारा फॉर्मल जो है, फॉर्मल तो मैं हर जगह पहन के जा सकता हूँ. मान लिया पार्टी हो गया, उसके बाद मैं ऑफिस जा सकता हूँ. उसके बाद में फॉर्मल का जो हमारा शर्ट का जो कलर आता है, मैं वाइट भी पहन सकता हूँ, ब्लैक भी पहन सकता हूँ, और भी जितना कलर होता है वो भी हम लोग पहन सकते हैं. लेकिन फ्लावर इस पे नहीं जाएगा. ऑफिस में मैं फ्लावर शर्ट तो पहन के जा नहीं सकता हूँ. तो हमारा ये सब भी करेक्ट. सो जस्ट टू ऐड अप हियर, तो जनरली क्या होता है कि जब हम शर्ट्स में देखते हैं, एज वी स्पोक अबाउट द मेजरमेंट वाला पार्ट, तो पकड़ लीजिए यू वेंट टू अ शॉप जहाँ पे ट्रायल रूम नहीं है एंड यू नॉट एबल टू ट्राई. तो बस ऊपर से ही आपको देखना है कि जब आप शर्ट्स खरीदे ना, तो स्लीव्स लेने के चक्कर में मेक श्योर कि आप पहनने के बाद, ठीक है, कम से कम आपके स्लीव्स यहाँ पे आना चाहिए. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लीव्स यहाँ पे आपका स्टॉप हो रहा, आपका शोल्डर एकदम पॉइंट में होना चाहिए. मेक श्योर आपके लेंथ्स कैसे डिसाइड होते हैं, जो जनरली आई वांट टू टेल द ऑडियंस. सो व्हेन एवर यू वेयरिंग अ पैंट, ये जो आपका जिप लेंथ होता है, शर्ट का जो टॉप लेंथ होना चाहिए वो जिप लेंथ के मिडिल तक आके रुक जाना चाहिए, ताकि इन केस अगर कभी कभी होता है कि वी आर वेयरिंग चिनोज एंड हमें ऑफिस पार्टी से निकल के कहीं और जाना, तो सिंपली वी जस्ट हमने शर्ट्स को निकाल लिया एंड देन पहन लिया. ज़्यादा बड़ा होगा, इट विल लुक ऑड. तो मेक श्योर वेन एवर यू वेयरिंग, एंड इससे ये आपका साइज भी पता चलता है. अगर आप ऑल्ट्रेशंस करवा रहे हो, तो ये बहुत सारे टाइम में देखना कि बहुत लोग शर्ट्स को बहुत ज़्यादा ऑल्टर करवा लेते हैं. मेक श्योर कि ये वाला जो एरिया हो ये थोड़ा सा लूज हो. ये चेस्ट एरिया आप अपने हिसाब से कंफर्ट करके रख सकते हैं ताकि वो बॉडी शेप दिखे. व्हाई आई एम आस्किंग दिस पोर्शन टू बी लूज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम डिनर पे या लंच में जा रहे, खाने के बाद थोड़ा सा एक टमी दिखता है. सो जस्ट टू कीप दैट अपडेटेड, ये पोर्शन अगर लूज रहेगा तो इट रियली गिव्स यू. एंड इसको पहचान में आने के लिए अगर आपको लग रहा है कि मैं ये शर्ट पहन के कितना अप्रोप्रिएट दिख सकता हूँ, सिंपल वेयर इट. और पहनने के बाद अगर आप जब बैठते हो और बैठने के बाद अगर आपका शर्ट्स बटन अगर शेड्स होके अगर आपके बॉडी पार्ट दिख रहा है, देन दैट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट. तो दीज आर द फ्यू स्टाइलिंग टिप्स एंड एवरीथिंग. सी एज आई सेड कि dark colors are very important in the evening time, the light colors are very important in the summer time, but at the same time you can play with the designs. As you can see, Huzar is actually wearing this. तो इसने अपना एक फ्रिल जैसा एक लुक दिया करके. You can wear it as long you are comfortable wearing it.
बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कॉलर पार्ट हो जाता है। द कॉलर शर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से टाइम में हम ऐसे कॉलर्स पहनते हैं तो कॉलर्स क्या हो जाते हैं कि ऐसे फैल जाता है। मेक श्योर योर व्हेनेवर यू आर वेयरिंग योर शर्ट कॉलर्स आर एक्चुअली दिस वे, इट इज लाइक टग विद द कॉलर इटसेल्फ, ये फ्लैट नहीं होना चाहिए। तो दीज आर फ्यू टिप्स विच रियली हेल्प्स यू। आपके जो पैंट के लेंथ होने चाहिए वो आपके एंकल तक का होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप फॉर्मल शूज पहन रहे हैं वो फॉर्मल शू में टच करना चाहिए, ना ही कि उससे ज्यादा कम होना चाहिए आपका पैर का पोर्शन दिखे, ना ही कि उससे ज्यादा होना चाहिए कि शू को पूरा ढक ले। तो दीज आर द फ्यू टिप्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। ऑल्सो ऑन द पैंट साइज में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अभी एक नया फैशन चला बलून पैंट, विच इज ओके फॉर अ फैशन ट्रेंड, बट इन एन ऑफिस अटायर मेक श्योर कि आपका जो थाई पोर्शन है, ठीक है, वो आप कंफर्ट रखें ताकि बैठने के टाइम में वो आपका जब एक प्रेशर पॉइंट आता है बॉडी का वो एक्सीड करता, कपड़े टानता है, तो वो कंफर्ट रहे। एंड थाई के नीचे वाला जो पोजीशन है वो इतना भी आपको ऑल्टर नहीं करवाना है और ज़्यादा भी एंकल लेंथ नहीं करवाना। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप एंकल लेंथ करवाते हो तो आप बार बार आपका पैंट जो है ऊपर की तरफ आ जाता है। एग्जैक्टली ठीक है। एंड बहुत से टाइम में हमने फॉर्मल अटायर्स में ये देखते हैं कि आपका एक जो ये शर्ट लेंथ है, तो ये जो पोर्शन आपका जो एक स्टाइलिंग, अगर आपको लगता है कि परफेक्ट मैं कैसा दिखता हूँ, तो ये शर्ट का पूरा ये बटन होगा, ये बेल्ट भी जब हम पहनते हैं, डोंट वेयर ये टू मेनी जैजी काइंड ऑफ अ बेल्ट, वेयर अ सिंपल लेदर बेल्ट इन अ फॉर्मल अटायर, ताकि वो बेल्ट का भी जो बक्कल पॉइंट है, आपका शर्ट पॉइंट एंड आपका जो पैंट का जिप पॉइंट है वो एक होना चाहिए। अगर वो एक दिखता है डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लुक स्मार्ट ऑन दैट। অবভিয়াসলি। আচ্ছা, ফর্মাল নিয়ে কত কিছু জানলাম, মানে ফর্মালি আমরা ভাবি কি সাধারণত একটা শার্ট ইন করে পরে নিলাম ব্যাস হয়ে গেল, কিন্তু ফর্মালেও কত কিছু ধ্যান দিতে হয় আমাদেরকে। তো আমি সেমি ফর্মাল নিয়েও একটুখানি জানবো, আমাদের গেস্টও রয়েছেন, তার কি ধারণা রয়েছে আগে শুনবো, তারপরে জানবো যে সেমি ফর্মালে কি কি আমাদের টিপস দেওয়া যায়, কি কি টিপস আমাদের নেওয়ার রয়েছে। নেক্সট গেস্ট আমাদের ফিরোজ সর্দার। হ্যালো, ওয়েলকাম টু জিও বাংলা। আচ্ছা, সেমি ফর্মাল নিয়ে তোমার কি বক্তব্য রয়েছে প্রথমে শুনবো। প্রথমেই বলি, মানে যে কোনো ফ্যাশন সেন্স মানে শুড বি কাম ফ্রম উইদিন। মানে আমি যে পোশাকটা বুঝছি সেটাতে আমি কতটা কমফোর্টেবল, আমি কতটা কনফিডেন্টলি সেটা ক্যারি করতে পারি, তো সেটার উপর বেস করে মানে সেমি ফর্মাল একটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং জিনিস আমার কাছে। এটা ফর্মালও না প্রপারলি, আবার একটা ক্যাজুয়াল ওয়্যারও না। মানে এটাকে আমি দুটো জায়গা এবং মাল্টিপল পারপাসের জন্য ইউজ করতে পারি। যেমন আমি অফিস থেকে কোথাও কোনো পার্টিতে গেলাম, মানে উইকেন্ডে অনেক সময় অফিসে বসে অনেক রকম ডিসকাশন হয়, তো সেরকম একটা কাজে আমরা গেলাম, হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে সেমি ফর্মালটা আমার কাছে ভীষণ একটা কি বলবো, একটা অ্যাট্রাকশনের জায়গা। মানে আমি মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে অনেক সময় ইয়ে করি। তো আমি যেটা করি মানে ডার্ক লাইট কালারের যে ব্যাপারটা হয় আর কি, মানে যখন আমার মুডের উপর অনেকটা ডিপেন্ড করে। লাইক আমার আজকে লাল পরতে ইচ্ছে হচ্ছে, একটা লাল পোলো টি শার্টের সঙ্গে একটা ব্ল্যাক কিছু একটা জিন্স বা ব্ল্যাক কিছু একটা ফর্মাল প্যান্ট পরে নিলাম, একটা লাইট কালারের সঙ্গে স্কাই কালারের একটা শার্টের সঙ্গে একটা আমার সুইটেবল একটা জিন্স পরে নিলাম। তো এইভাবে আমি যাই। তো আমার কাছে এই এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাপারটা বা এটা এই পোশাকটাকে নিয়ে এনজয় করাটা আমি ভীষণ মানে পছন্দ করি আর কি। মানে ও সেমি ফর্মালটা খুব পছন্দ করে, বোঝা যাচ্ছে। करेक्ट। सो टुडे लाइक वी रियली वांट टू शो सम करेक्शंस हियर, तो इसीलिए हमने इनको बोला था कि वेयर समथिंग जहाँ पे हम ऑडियंस को दिखा सकते हैं कि विच आर करेक्ट विच आर नॉट करेक्ट। सो बेसिकली व्हेनेवर यू गोइंग फॉर अ फर्स्ट थिंग दैट बीन नोटिस्ड इन अ फॉर्मल, ये हम आपको एक डेमो करके दिखा रहे हैं। डेफिनेटली ही अप्रोप्रिएट्स वेल एंड ही ड्रेस्ड अप वेल। तो ये आपका ये बटन बंद होना चाहिए। सो इफ यू रियली सी दैट फ्लोरल, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोरल, तो ये फ्लोरल आपका पहन रहे व्हेनेवर यू गोइंग फॉर अ लाइक कैजुअल आउटिंग्स, लाइक आप अगर कोई स्विमिंग पूल साइड जा रहे हैं, कोई ओशन साइड से वो जा रहे हैं, तो इसके साथ में जो हाफ चिनोज होता है दैट विल गो वेल, और अ फुल चिनोज जहाँ पे आप स्नीकर्स पहन सकते हैं, करेक्ट, तो इसके साथ जाएगा। अब क्या है कि फ्लोरल आप अगर से कैजुअल में पहन सकते हैं, बट सेमी फॉर्मल में आप फ्लोरल्स नहीं पहन सकते। देयर हैज टू बी सम गुड चेक्स पॉइंट एंड कुछ पैटर्न्स होना चाहिए, करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ओवरऑल कैरिंग योरसेल्फ। तो एज आई सेड कि स्लीव्स एंड एवरीथिंग साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर हमारे वार्डरोब्स में 3-4 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए विच गिव्स योर स्टाइल स्टेटमेंट एंड विच आर वेरी इजी फॉर अ रेगुलर वेयर। कि आपके पास में अगर फॉर्मल ब्लैक पैंट ट्राउज़र आप यूज़ करें तो ब्लैक होना चाहिए, डार्क ब्लू होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए,
एंड इफ़ यू रियली वांट चिनोज अच्छे कलर के आप हो सकते हैं, लाइट कलर के आप यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर आप सेम कलर आपके पास में सॉक्स होने चाहिए। बेल्ट अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपके जो फॉर्मल शूज़ है, स्मार्ट फॉर्मल शूज़ है, उसके साथ आपके साथ मैच होना चाहिए। यू शुड फॉर एन ऑफिस थोड़ा सा डार्क कलर छोड़कर, अगर हम सॉलिड कलर छोड़ के प्लेन डिज़ाइन छोड़कर अगर आना चाहते हैं तो स्मॉल चेक्स एंड अच्छे पैटर्न्स हमारे पास में होना चाहिए। एट द सेम टाइम वॉचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव ऑल द चेन वॉचेस or the leather plates, then definitely accessories if you really want to wear a glass and everything. So these are very common. उसके साथ साथ में you should have this polo t-shirts, V-neck। और एक और चीज़ है कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँ, बहुत से टाइम में जो मस्कुलर जिनका बॉडी होता है, जो जिम बॉडी होता है, उनके ऊपर में V-neck जाता है, बहुत ज़्यादा डीप V-neck नहीं। जिनके पास जो बहुत लीन है, आई वुड प्रेफर कि आप राउंड टी शर्ट ही, राउंड वाला टी शर्ट पहने। एंड राउंड टी शर्ट में भी अगर आप सॉलिड कलर टी शर्ट्स पहन रहे, दैट विल गिव यू, अभी के टाइम में देखना ना बहुत ज़्यादा ग्राफिक प्रिंट आ चुका है, एट टाइम्स डजंट सूट्स योर पर्सनालिटी। तो मेक श्योर अगर आप ग्राफिक्स वाला टी शर्ट ले रहे हो राउंड में, शुड हैव एन अप्रोप्रिएट डिजाइंस, कुछ भी आप मत पहन लो। सो आप वीनिक पहन सकते हो ओनली व्हेन यू हैव अ लिटिल डोले शोले, एंड आप राउंड तभी पहन सकते हो, डेफिनेटली बोथ साइड में। जो थोड़े से लीन है उनके लिए राउंड जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम राउंड टी शर्ट पहन रहे हैं और उसके ऊपर में अगर हमें पार्टी में जाना है सॉलिड कलर में, दैट हम बॉम्बोज ले सकते हैं, कूल जैकेट्स ले सकते हैं। सो दीज आर वेरी इजी गोइंग। तो यू शुड हैव दीज लाइक सॉलिड कलर्स एंड लिटिल लाइट कलर्स ऑन योर वार्डरोब फॉर यू। See, it's not about every day going and purchasing your clothes for your wardrobe. It's also about cross styling. So when you understand about the cross styling, then I'm sure you are shorter. So yes, over to you. আচ্ছা, আমাদের দুজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন, তিথি চৌধুরী এবং প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী। তাদের কি প্রশ্ন রয়েছে শুনবো। Please. নমস্কার, আমি তিথি চৌধুরী, আমি একজন চিত্রশিল্পী। আমার আজকের প্রশ্ন হলো, প্রেজেন্টেশন এখনকার দিনে একটা অনেক বড় বিষয়। সব জায়গায় নিজেকে কিভাবে প্রেজেন্ট করব। নমস্কার, আমি প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, একটা প্রাইভেট হেলথ কেয়ারে কাজ করি। বিষয়টা হচ্ছে যে প্রেজেন্টেবল হওয়াটা এখন একটা বড় বিষয় সব জায়গায়। আমার প্রশ্ন সেটাই যে কিভাবে নিজেকে ভালোভাবে প্রেজেন্ট করা যায়। হ্যাঁ, মানে এই যে জবের যদি ইন্টারভিউতে যায় তো প্রেজেন্টেশন একটা বড় ব্যাপার থাকে। তো এই প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে তুমি কি টিপস দেবে, কিভাবে তাদেরকে যাওয়া উচিত, কি রকম পার্সোনালিটি তাদের দেখানো উচিত, বা কি রকম পাওয়ারফুল পার্সোনালিটির কথা তুমি বলবে? Correct. So बहुत से टाइम में वी हैव नोटिस इन द इंटरव्यू पीपल रियली वांट टू लुक गुड, फिट। तो बहुत से टाइम में वो लोग बहुत फिट टी शर्ट्स पहन कर आते हैं, करेक्ट। तो वो शर्ट्स एज ए सेट कि यहाँ पे थोड़ा सा लूज होना चाहिए, आपका अगर चेस्ट पॉइंट है तो वहाँ पे जाए। बहुत से टाइम ये देखा गया कि लोग जब इनर वेयर पहनते हैं, ठीक है, वो अगर आपका परफेक्ट नहीं आता है तो वो आपको दिखेगा बाहर से। तो अगर इफ यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग इट, तो मेक श्योर आपका जो इनर वेयर है वो बॉडी फिट होना चाहिए, बॉडी हगिंग होना चाहिए, ताकि वो बाहर से एक्स्ट्रा आपको एड अप नहीं दिखे। एंड स्पेशली व्हेन यू वेयरिंग अ लाइट कलर विच आर लिटिल ट्रांसपेरेंट, तो उसमें आप कोई अंदर ब्लैक कलर ना पहन ले, व्हाइट के साथ दिखेगा। अगर कोई लाइट पिंक पहन रहे हैं तो डार्क नहीं पहनना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में क्या होता है, सी आउटफिट इंपॉर्टेंट होता है, आपका हेयर स्टाइल इंपॉर्टेंट, शुड बी प्रॉपर कॉम्ड। आपके बाल बहुत ट्रिम होना चाहिए, अगर आपके लंबे बाल हैं दे डेफिनेटली शुड बी वेरी गुड टाई। एंड ऑलवेज वेयर अ स्माइल, कॉन्फिडेंट। अगर आपके बियर्ड्स है तो वो मैं ट्रिम फुली नहीं बोल सकता हूँ, बट यू वेयर योर स्टाइल, बट देन जितना स्मार्ट कैजुअल क्लासिक दिख सकते हो आप उसमें दिखो। ऑलवेज वेयर गुड शूज। मतलब मेरे को अगर कोई पूछा जाए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना, आई ऑलवेज स्पेंड माई मनी ऑन माई शूज, बिकॉज दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, वेयर you get attracted to the entire. Is the last Yes. impression. Always wear watches, good watches, because these are accessory which suits your. तो इंटरव्यू में जाने के लिए always try and wear a light soothing color, especially with a dark, the formal pant. Good formal shoes, similar to the belt you're wearing. Smart, watches, and make sure you have a good smile. You're proper, well groomed. क्योंकि स्माइल जब आप देते हैं ना तो यू गेट दैट पॉजिटिव, एंड देन कॉन्फिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ड्रेसिंग। মানে ইন্টারভিউ টেনশন মনে মনে থাকলেও মুখে কিন্তু একটা হাসি থাকতেই হবে, মানে Absolutely. মনের এই টেনশনটা যেন মুখে প্রকাশ না পায়। Absolutely. অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে আমাদেরকে এত ভালোভাবে টিপস দেওয়ার জন্য। আজকে অনেক কিছু আমরা শিখলাম, আশা করি দর্শকদেরও অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে, আর তোমাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের যদি স্বাদ সংক্রান্ত কোনো রকমের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদেরকে জানাতে পারেন আমাদের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে, অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। আপনাদের সমস্যা নিয়ে আমি পৌঁছে যাবো এক্সপার্টদের কাছে সমাধানের জন্য।
ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর অবশ্যই দেখতে থাকুন জিও বাংলা। প্রতি মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার ঠিক দুপুর 3টের সময় দেখুন বিউটি কথা মেঘার সাথে। নমস্কার।